السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم آمين يا رب العالمين۔ میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ریویو کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارا اسی ہفتے انشاءاللہ قرآن مجید جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، عامہ پارہ۔ انشاءاللہ ہم اسی ہفتے میں شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہمارا ایک جو ہم نون ساکن اور تنوین کے جو احکامات پڑھ رہے تھے، ہم پہلے کنٹینیو کریں گے اس کو، لیکن اس سے پہلے میں ایک ریویو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آئے سب مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف، ألف واو، واو یا، با، میم، فا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو تین لیٹرز ہیں کہ جس میں ہم اپنی زبان کی نوک کو لگاتے ہیں اوپر والے دانتوں کے بالکل نیچے کنارے پر، سا، اور بالکل ویسے ہی پڑھیں گے ہم ذال، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تیسرا حرف ہے اس کو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے لیکن موٹا کرنا ہے، صرف وا، وا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے تا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے دال، ٹھیک ہے، تیسرا ہے قا، تا، دال، قا۔ اس کے اندر ہم اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تین حروف ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، دانتوں کو ملانا ہے۔ ز، س، سین، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد موٹی سی ٹی آئے گی، صاد، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوا نہیں ہو، واؤ نہیں آئے، بلکہ سیدھی آواز ہو اور آواز موٹی ہو، صاد۔ اس کے بعد پھر ہے جیم، ٹھیک ہے، شین، شین کی آواز پھیلنی چاہیے، ایسے، شین، ٹھیک ہے۔ جب یہ جو ایک ایک ورڈ لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں، جب ہم قرآن مجید میں آئیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جو ہم منہ سے نکالے نا شین، قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا حسن آئے گا وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ قوف، حلق کے بالکل دروازے پر، حلق کے بالکل شروع میں، اور اس سے اگر ہم منہ کی طرف آئیں، حلق سے جہاں سے حلق شروع ہو رہا ہے وہاں تھوڑا سا اس سے پہلے کے ساؤنڈ، کیف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رو، لام، نون، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے پھر جو چھ حروف حلقی ہیں حلق سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری جو حلق کی جڑ ہے وہاں سے حمزہ، ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا اوپر آئیے، ہمارے جو گلے کا بالکل درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، عین، ہے، بالکل درمیان حلق سے نکلتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو اس کو نکالنے میں پرابلم بھی ہو نا تو وہ اپنے یہ بیچ سے بالکل ہلکا سا پریس کرے، دبائے تو صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے غین، خا، ٹھیک ہے نا، حمزہ، ہے، عین، حاء، غین، خاء، اور اس کے بعد آخری لفظ جو ہے اس کے ہم نے دو پڑھے تھے، ایک تو ہم نے پڑھا تھا اس کا ضاد، یہ ہے د کو اور موٹا کر دیں ضاد، ایک ہم نے اس کا یہ پڑھا تھا
दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जबान स्टिल है, जबान के दो किनारे होते हैं, एक सीधा किनारा एक उल्टा किनारा। उल्टा किनारा जबान का लगेगा ऊपर वाले दांतों से और निकलेगा लौद, लौद, लौद। ठीक है ना, ये दो मखरज हैं इसके, ये दो निकलने के जो है तरीके हैं, निकालने के तरीके हैं लौद के या गौद के। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने हरूफ मद्दा पढ़े। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं अपने लेसन के ऊपर। हमने पढ़ा हरूफ मद्दा, ये सब आपके पास होना चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ। अलिफ वाव या, ठीक है ना, हरूफ मद्दा अलिफ वाव या हमने पढ़े। उसके बाद नंबर दो पे फिर हमने पढ़ा था हरूफ लीन। दो पे तो नहीं है ये मेरे ख्याल में, लेकिन हरूफ लीन अभी फिलहाल जो नंबरिंग कर रहा हूँ मैं उसके हिसाब से। ठीक है, हरूफ लीन हमने पढ़े वाव और या। उसके बाद फिर हमने हरूफ कलकला पढ़े, है ना, कलकला हम पढ़ चुके। कलकला, उसको वो है कुतुबु जद्दिन, है ना, कुतुबु जद्दिन। जब भी कौफ तो बाजिम दाल जब भी इन पे साकिन होगा, जब भी हम इनको सुकून देंगे, इनके ऊपर रुकेंगे, जब भी रुकेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना, इनसे मिलाएंगे, रुकने की हालत में हो या पहले हो, तो हमने टकराते हुए मिलाना है। ठीक है ना, अको, अतो, अब, अज, अद, ये डबल आवाज होगी, ठीक है ना, टकराएगी आवाज। नंबर चार हमने पढ़ा कलकला के बाद गुन्ना। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि गुन्ना के दो हैं, एक तो है नून उसके ऊपर तशदीद हो, और दूसरा मीम उसके ऊपर तशदीद हो। इन दो हालतों में गुन्ना होता है। उसके बाद नंबर पाँच जो हमने पढ़ा इख्फा। इख्फा, इख्फा हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इख्फा इज स्टिल कंटिन्यूड। हमने उसके बाद पढ़ा नून साकिन, नून साकिन और तनवीन। तनवीन का मतलब हमने पढ़ा दो जबर और दो जेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन और तनवीन, कुरान मजीद में नून साकिन और तनवीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है जी। तो नून साकिन और तनवीन के चार अहकामात हैं। ठीक है ना, उनमें से पहला हुक्म हमने पढ़ा जिसको कहते हैं इजहार। इजहार, इजहार का मतलब क्या होता है, जाहिर करना, जाहिर करना। और दूसरे इसके मायने जो हमने लिखे वो है गुन्ना और इख्फा के बगैर पढ़ना, के बगैर पढ़ना, यानी कि सिर्फ जाहिर करना, ओपन रीडिंग हम कहेंगे, है ना, बगैर पढ़ना। गुन्ना और इख्फा के बगैर पढ़ना, यानी कि इट इज कॉल्ड एक्चुअली ओपन रीडिंग, सिंपल रीडिंग कह लें आप, सिंपल रीड करना। इजहार का मतलब क्या है, आप मुझे ये भी पूछते हैं भाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजहार। इजहार का मतलब क्या है, आप बोले सिंपल रीड करना। मैं कहूंगा भाई सिंपल रीडिंग से क्या मुराद है आपकी। आप बता दीजिएगा भाई, गुन्ना और इख्फा के बगैर पढ़ना, किसी भी किस्म के तरन्नुम की इजाजत नहीं है। और उसके कुछ हरूफ हैं, कौन से हैं, हरूफ इजहार जो हैं वो वही हैं जो हरूफ हल्की हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गईन, क़ा, ये छह हरूफ हैं हरूफ इजहार। हरूफ इजहार, हरूफ हल्की को हम हरूफ इजहार भी कहते हैं। मतलब क्या होगा, कुरान मजीद में कहीं भी नून साकिन आ जाए या कहीं भी तनवीन आए, दो जबर दो जेर और दो पेश, है ना, और इन छह में से कोई हर्फ आ जाए तो हमें इजहार करना होगा, यानी कि बगैर गुन्ना और बगैर इख्फा के सिर्फ और सिर्फ सिंपल रीडिंग करनी होगी। मिसाल के तौर पे अन आमता, है ना, अन आमता या अन आमता, ये सब नहीं है, गलत है। अन आमता, सॉरी, ये मैं बाबर उसको ना ऐसे बना देता हूँ, अन आमता। ठीक है ना, अन आमता गलत हो जाएगा, अन आमता गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ना है, सिंपल रीडिंग, अन आमता। ठीक है ना, इसी तरीके से कुफुवन अहद, कुफुवन, कुफु वन। अब ये वन दो जबर आ गए, आगे क्या है, ये आ गई हमजा। अच्छा, वो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत हो उसे भी हमजा कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। वो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत हो, यानी कि जबर हो या जेर हो या पेश हो, या दो जबर हो दो जेर हो दो पेश हो, तो उसको हम हमजा कहेंगे। ये है ना अहद जो लिखा हुआ है, अहद के अंदर जब आप इसकी स्पेलिंग करेंगे तो क्या है, ये अहदुन है असल में। तो क्या है, हमजा जबर आ, हा जबर हा, आहा, इस तरह होगा। ठीक है ना, वो अलिफ के जिसके ऊपर कोई हरकत हो, जबर जेर या पेश कोई सी भी हरकत हो या तनवीन हो, तो उसको हम हमजा कहते हैं, उसको हम अलिफ नहीं कहते। तो देखें यहाँ पे आ गया तनवीन। अब यहाँ कोई अगर इस तरह पढ़े वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, गलत, गलत, तरन्नुम हो ही नहीं सकता, तरन्नुम की आवाज आ ही नहीं सकती। ये
जब तक के जो है ना ये क्या कहते हैं, जबकि तनवीन के बाद या तो नून साकिन होता या तनवीन होती, इन दोनों में से कोई एक भी हो और उसके बाद अगर इन छह में से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम तरन्नुम नहीं कर सकते, हराम है। ठीक है ना, हमें सिंपल रीडिंग करनी है। हमने क्या पढ़ना है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कुफुवन कुफुवन ऐसा कुछ नहीं, कुफुवन अहद, सिंपल। ठीक है ना। तो ये देखें पहले ही मना हो गया कि ये छह हरूफ का आपने ख्याल रखना है। कुरान मजीद में जहां जहां नून साकिन या तनवीन के बाद इन ये छह हरूफ आए तो हमने ना गुन्ना करना है ना इख्फा करना है। ठीक है जी। आगे चलें। आप लोग अगर कहते हैं कि यहाँ तक सबको सबको ओके है तो मुझे ओके दीजिए ताकि हम आगे चलें। जल्दी से ओके करें। ओके। फरहान भाई तो ओके, ठीक है। और मिस सुमा बता दें आप, और सबाहत, ठीक है सबाहत भी ओके जी। मिस सुमा समझ आया आपको? मिस सुमा आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकती हैं, हाँ, या तो लिख दें चैट बॉक्स में। अच्छा, तो अगर सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं ठीक है सर, आगे चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दें, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब है दूसरा हुक्म, नून साकिन और तनवीन के जो अहकामात मैं यहाँ लिखता हूँ, नून साकिन और तनवीन के अहकामात ना, अहकामात, तो उसमें से पहला हुक्म हमने पढ़ लिया, अहकामात हुक्म की जमा है ना, अहकामात। तो पहला हमने पढ़ लिया इजहार। ठीक है ना, इजहार के छह हरूफ हमने पढ़ लिए, हमजा हा आइन हा गैर हा। अच्छा, अ, उसके बाद नंबर दो अब हम पढ़ेंगे, उसका नाम है इदगाम। ठीक है जी, इदगाम। अच्छा, इदगाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, इदगाम, इदगाम का मतलब होता है मिलाना। इसकी जो मीनिंग है, मिलाना, टू ज्वाइन, टू ज्वाइन। ठीक है ना, इदगाम का मतलब क्या होता है, मिलाना, ज्वाइन करना। और नून साकिन और तनवीन की मौजूदगी में मिलाना। ठीक है जी, नून साकिन और तनवीन की मौजूदगी में मिलाना, उसको इदगाम कहेंगे। मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मिसाल देता हूँ। मिसाल होता है, नून साकिन और तनवीन होता है मिन, मैंने लिखा मिन। पहले मैं इसके आपको हरूफ लिखवा देता हूँ, सॉरी, हाँ, पहले इसके छह हरूफ हैं। ठीक है ना, इसके छह हरूफ हैं। ठीक है जी, इसके मैं अब काले पे जाता हूँ। ठीक है, छह हरूफ इसके कौन से हैं? या, रॉ, मीम, लैम, वाव, नून। ये बनता है यरमलून। ठीक है जी, यरमलून क्या बन गया ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यरमलून, यरमलून, या रॉ मीम लाम वाव नून। अच्छा, इसके अंदर होता ये है, इसमें से दो जो है ना, इसमें से दो को मैं कर रहा हूँ, लाम और रॉ को मैंने कर दिया ब्रैकेट में। अगर लाम और रॉ को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ तो बचता है या मीम वाव नून, या वाव मीम नून। अगर या वाव मीम नून कर लें इसको ताकि याद करने में आसानी हो, ये बन जाएगा यू मिन, या वाव मीम नून, यूमिन, है ना, या वाव मीम नून से यूमिन बनता है। लाम और रॉ को वैसे ही रहने दें। ठीक है ना। तो यरमलून वैसे छह हरूफ हैं। ठीक है ना। इसमें होता ये है, ये जो लिखा है ना यूमिन, या वाव और मीम नून, इसमें होता ये है कि नून साकिन के बाद जो है ना, नून साकिन और तनवीन के बाद जो है ना, होता ये है कि ये किस तरह आते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से पहले मैं नून लेता हूँ। ठीक है ना, मैं नून ले रहा हूँ, मिन, नून साकिन आ गया पहले तो, नहीं, पहले मैं वाव ले रहा हूँ, सॉरी, नून साकिन आ गया, ये तो मिन आ गया, नून साकिन। उसके बाद इसको पढ़ के दिखाइए क्या है ये। कैसे पढ़ेंगे इसको? सर मिन वाराका। ठीक है, मिन वराका। अच्छा, अब बताइएगा मुझे, अब बताएं कैसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे मिम, मिम वरक़त, वाराका। हाँ, वरक़ा। दोबारा पढ़ें। मिम वाराका। अब आप लोग इसको पढ़ेंगे म्यू, और है ना, म्यू, मीम जी। को
واو से डायरेक्ट मिलाएंगे, क्यों? नून साकिन तो है, लेकिन नून साकिन के बाद ये देखें, ये रहा नून साकिन, नून साकिन मौजूद है, लेकिन उसके बाद तजदीद आ गई है, और तजदीद मिलाने के लिए होती है। तो यहाँ इदगाम करेंगे हम, यहाँ पर इदगाम करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा मतलब, है ना, क्योंकि तजदीद है। तो अब क्या होगा, ये मीम डायरेक्ट वाव से मिलेगी इस तरीके से, है ना, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ से मिलेगी। और नून की आवाज़ कहाँ जाएगी? नून की आवाज़ नाक में जाएगी हमारे, म्यूं वराक़तिन। ठीक है ना? इसी तरीके से मैं आपको तनवीन की मिसाल देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये है ऐसे, खई रन, और उसके बाद है यरहू, यरहू, खैरन। अभी ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है खैरन यरहू। अब जब यहाँ पे मैं तजदीद लगा दूंगा, यहाँ पर एक दो, ये मैंने तजदीद लगा दी। अब क्या है देखें आप, अब ये तनवीन है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये या है। तो क्या होगा ये, असल में तो खैरन यरहू है, तो अब मिलाना पड़ेगा आपको। आप क्या पढ़ेंगे इसको? खैरन यरा। हाँ, खई रई पढ़ना पड़ेगा आपको ना, अब रॉ को यहाँ से मिलाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा खई रई या रॉ। तो इसको कहते हैं खई रई या रॉ, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इदगाम बागुन्ना, यानी कि इदगाम के, अब जो है ना वो दो आएंगे, ठीक है ना। इदगाम के अब आएंगे, एक मिनट रुके, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल लिखवा दूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, अच्छा ज़रा मैं आप लोगों को सुकून से, हम्म, तख़फ़ीम व तरक़ीक़ है इलल्लाहि तुरजअउल उमूर। बस एक सेकंड रुकिएगा, ताकि ज़रा अच्छी साथी मिसालें आ जाएं। हाँ, ओके, ये आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर इतनी सारी हैं, मैं आप लोगों को ना इसका स्नैपशॉट भी खींच के भेजूंगा इंशाल्लाह। और हम्म, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक और लफ्ज़ है, बहुत सारे हैं वैसे तो खैर, एक और लफ्ज़ है, मीम नून जेर मिन, ठीक है ना। मीम नून जेर मिन आ गया, नून साकिन आ गया, महयस सौद आ गया। अभी देखें यहाँ पे नून मीम के ऊपर तजदीद आ गई, मिम महीस। तो मीम डायरेक्ट मीम से मिलेगी, है ना। तो ये कहते हैं असल में इसमें आवाज़ जो है ना वो नाक में जानी चाहिए। तो ये जो ये है या वाव मीम नून, जब भी ऐसा होगा कभी कि नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, या नून साकिन के बाद मीम आ रही है, या नून साकिन के बाद जो है वो या आ रही है, या मतलब या वाव मीम नून, जब भी ये चार हरूफ आएंगे ना, तो इसके अंदर हम मिलाएंगे, सिर्फ मिलाएंगे नहीं, इसमें हम इदगाम बा गुन्ना करेंगे, गुन्ना करते हुए मिलाएंगे। इसको इदगाम बा गुन्ना कहते हैं, ठीक है ना, इदगाम बा गुन्ना। यानी कि आवाज़ कैसे होगी, म्यू फमई। अब इससे पहले क्या था देखें, इससे पहले लफ्ज था फमन यामल, फमन यामल, ये था। अब हुआ क्या है, वो फमन यामल, इसमें हमने यहाँ पे तजदीद लगा दिया मिलाने के लिए, इदगाम क्यों होगा यहाँ पर। अच्छा याद रखिएगा, जब भी नून साकिन होगा या तनवीन होगी, जैसे कि दो जबर दूसरे दो पेश, तब तो ये इदगाम हो रहा होगा। उसके अलावा, और जब इस सिचुएशन क्या हो कि ये यरमलून हो, तभी इदगाम होगा, वरना वैसे इदगाम नहीं होगा। हम जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, फमन यअमल, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, खैरन यरा। देखिए ना, खैरन यरा, आगे आएगा, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो खैरन यरा, शर्रन यरा, फमन यअमल, वमन यअमल। देखिए ना, ये नून साकिन की मौजूदगी में मिला रहे हैं आप, यहाँ तनवीन की मौजूदगी में मिला रहे हैं। इसे कहते हैं इदगाम, ठीक है ना। तो इतने सारे इदगाम आएंगे कुरान मजीद में, इदगाम ही इदगाम है, ठीक है जी, बहुत सारे। अब दो में क्या होता है, जो मैंने लाम और रॉ को जो मैंने अलग किया हुआ है, लाम और रॉ को जो मैंने अलग किया है, उसके अंदर भी इदगाम तो होता है, लेकिन बिला गुन्ना होता है, उसमें गुन्ना नहीं होता।
मिसाल के तौर पे देखें कि अगर मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ, ज़रा एक मिनट, ये यहाँ पर इसको मिटा दूँ ज़रा मैं, ठीक है ना, इसको मैंने मिटा दिया और इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे मैं लाम और रॉ दिखाता हूँ आपको। लाम और रॉ में आप वही करेंगे, इदगाम ही करेंगे ऐसे। मिन, मिन नून साकिन आ गया, लदुन का, अभी क्या होगा, मिल्लदुन का, ये तो आगे है ना, लेकिन मिल्ला। अब लाम और रॉ ऐसे हुरूफ हैं कि इसके अंदर कोई गुन्ना की कोई सिचुएशन बनी नहीं सकती, है ना, मिल्ला। अब हो क्या रहा है, ये मीम लाम जेर मिल हो रहा है, मिल्ला। इसी तरीके से मिर रहमतिन, मीम नून जेर मिन, रॉ आ गया, मिर रहमतिन, मिर रहमतिन, ये देखें, मिर रहमतिन। ठीक है ना, तो अब ये मिल्लदुन का और मिर रहमतिन, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे क्या है वो, अच्छा हाँ वो है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब क्या होता है, यहाँ पे यकुन है, वो असल में यकुन है, यकुन लहू। कुरान में पढ़ते हैं ना आप, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। अब देखें, असल में यकुन है, नून साकिन आ गया, लेकिन आगे लाम है। तो अब क्या कहें, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इदगाम बिगैरी गुन्ना है। बिगैरी गुन्ना भी कहते हैं इसको, बगैर गुन्ना कह लें आप, बिगैरी अरबी में कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं बगैर गुन्ना या बिला, इसका मतलब ही वही है, बिला गुन्ना। तो इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम बा गुन्ना। अच्छा, अगर आप कहेंगे बा का मतलब क्या है, बा का मतलब इंग्लिश में होगा विद, इदगाम विद गुन्ना, और बिला का मतलब होगा विदाउट, इदगाम विदाउट गुन्ना कहलाता ही है। ठीक है ना, हालांकि इसमें जो आवाज आती है वो एग्जैक्टली गुन्ना की नहीं होती, लेकिन कहलाता ही है, गुन्ना ही है। فمن يعمل من ورقة، ठीक है ना, मिम्मा इन, इस तरह। तो ये है यरमलून, या मीम वाउ, उसमें यू मिन, ठीक है ना, यू मिन इसके अंदर है, जो कि या वाव या मीम वाव नून या वाव मीम नून एक ही बात है। इसमें जब भी हम मिलाएंगे, कायदा क्या होगा, नून साकिन या तनवीन की मौजूदगी में जब हम मिलाएंगे, तो हम इन चार हरूफ या वाव मीम नून के अंदर हम गुन्ना करते हुए मिलाएंगे। और जो इसके दो हैं लाम और रॉ, इदगाम तो इसमें भी होगा, यानी कि मिलाएंगे तो इसमें भी, लेकिन गुन्ना बगैर गुन्ना के, बगैर किसी तरन्नुम के मिलाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को इदगाम समझ में आया सबको? एक सेकेंड, ओके डन है, ठीक है ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मिसुमा आपको भी ये समझ में आया होगा इंशाल्लाह, है ना। जी जी ठीक है सर, आगे आगे चलिए। आगे चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हमारा तीसरा हर्फ है, ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा हर्फ है, तीसरा हर्फ क्या है हमारा, वो है इक़लाब। तीसरा जो हुक्म है उसका नाम है इक़लाब, इक़लाब, ठीक है जी। अच्छा, मैं इक़लाब की मीनिंग यहाँ लिख देता हूँ मैं। इक़लाब का मतलब होता है कल्ब, इक़लाब पलटना, पलटना, बदलना, ठीक है ना, पलटना, बदलना, उलटना, ये सारे मतलब हैं इक़लाब के, है ना। पलटना, अच्छा, कल्ब से, ये कल्ब भी, इसमें कल्ब यानी कि ये कल्ब से निकला हुआ है मतलब, ठीक है ना। तो कल्ब का मतलब देखें, हमारे दिल की कैफियत बदलती रहती है ना, उलटती पलटती रहती है, बदलती रहती है, तो इसीलिए इसको कल्ब कहते हैं। तो पलटना, बदलना, उलटना, इस तरह के मायने आते हैं। अच्छा, इसका एक हर्फ है, वो है बा, सिर्फ एक ही हर्फ है, ठीक है जी। अच्छा, बा। अब क्या होता है, कायदा क्या है भाई, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर अगर बा आ जाए, अगर बा आ गया, तो हम उसको बदल कर या पलट कर, बदल कर या
पलट कर मीम बना देते हैं। कैसे? आप लोग देखें, कुरान मजीद में एक छोटी सी मीम बनी हुई होती है। जैसे ये देखें, क्या है, अली मुन, अली मुन, ये आ गए, तनवीन आ गई। भले वो दो जबर की हो, भले वो दो जेर की, दो पेश की, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। हमें तनवीन होनी चाहिए, डबल, डबल वॉवेल्स होने चाहिए। अली मुन बिज़ातिस सुदूर। ठीक है जी। अब क्या होता है यहाँ पर कुरान मजीद में, हमारे यहाँ क्या होता है, छोटी सी एक मीम बनी हुई होती है ऐसे, है ना। हम क्या पढ़ते हैं इसको, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इसी तरीके से एक कोई नून साकिन होता है, मिन, आगे लिखा होता है बैनी। तो हम इसको मिन बैनी नहीं पढ़ते, एक मिनट, मिन, ये देखें, अब हम इसको मिन बैनी नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं मिम बैनी यखरुजु मिम बैनिस सुल्बी, है ना। तो ये मीम डायरेक्ट आके इस वाले मीम से मिलती है। पहले मीम पढ़ेंगे हम, और उसके बाद लफ्ज बा मुंह से निकलेगा। तो अली मोम। सर, जी जी बोले। हाँ मुझे ये पूछना था कि जैसे तनवीन का जो आपने बताया, तो उसमें दो जबर हो, दो जेर हो, या ये दो पेश हो, हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी हो तो हम फिर कुछ भी हो, डबल वॉवेल्स का मतलब हो जाएगा तनवीन। तनवीन हाँ, कहते ही डबल, डबल ठीक वॉवेल्स है, को हैं, ठीक है ना। सही, वो दो जबर भी हो सकते हैं, दो ठीक, जेर भी हो सकती हैं, दो पेश भी हो सकते दो पेश भी हो सकते हैं। हैं, ठीक। हाँ। और एक और चीज जो जहन में रखिए आप लोगों के, देखें असल में ये जो दो जबर, दो जेर और दो पेश है ना, तो ये तो समझे एक तरह से ये तो चेंज होते हैं जब जब भी इनसे पहले कुछ आ रहा होता है अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन इन तीनों की मीनिंग चेंज नहीं होते। इन तीनों का एक ही मीनिंग रहता है, जो कि इंग्लिश में हमारा आ है ना, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन को इंडिकेट करते हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इनसे जो पहले कोई भी आता है जिसे हम आमिल कहते हैं, आमिल हमारी जो ना अरबी जबान की टर्म में आमिल, कि कोई भी आमिल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से बेचारे वो दो पेश होते हैं। मतलब आप जब अरबी सीखेंगे ना, तो उसमें होगा भाई कि अरबी जबान के अंदर जो एक रूल है ना, वो क्या है, हर इसम, ऑल द नाउन्स, हर इसम जो होता है वो अपनी ओरिजिनल हालत में दो पेश के साथ एंड होगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपसे बोलता है कोई कि यार ये बताओ कि किताब को अरबी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगी किताबुन कहते हैं। ये ओरिजिनल हालत है हर हर्फ की, कोई सा भी इसम हो, अब्बू, अम्मी, दरवाजा, टेबल, कुछ भी बोलेंगे। अब्बू अबुन, अम्मी उम्मुन, भाई अखुन, बहन उख्तुन, आखिर में दो पेश है। कोई कंडीशन आएगी, वो दो पेश को या तो दो पेश बना, दो जबर बना देगी या दो जेर बना देगी। नॉर्मल एंडिंग यही है। और इसका किताब, इसका तर्जुमा क्या है, अ बुक, अ बुक, ठीक है ना। तो दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, डबल वॉवेल्स, इसका तर्जुमा एक ही रहता है, वो है आ। तो यहाँ पर भी अलीमुन बिदातिस सुदूर, ठीक है ना। तो जब भी तनवीन होगी या नून साकिन होगा, और रूल क्या है कि नून साकिन हो, जैसे ये रहा नून साकिन, ठीक है ना, नून साकिन हो, जैसे ये नून साकिन है, और या फिर तनवीन हो, जैसे ये तनवीन है। अगर तनवीन है नून साकिन के बाद डबल वॉवेल, या नून साकिन के बाद हरफ बा आएगा, ये रहा हरफ बा, तो हम पहले उसको मीम बनाएंगे, मीम पढ़ के, और उसमें हम करेंगे इख्फा। इख्फा कैसे होगा, कि देखें आप इसको पढ़ेंगे, अली मुम, अली मुम, है ना। इसको आप मुन नहीं कर सकते, मुम करना पड़ेगा। आपके दोनों होंठ मिलेंगे, और जब आप होंठ मिलाकर इसको तरन्नुम बनाएंगे, तो आपके होंठ में वाइब्रेशन होगी, अली मुम बिज़ातिस सुदूर। आप देखें ना, मीम बगैर होंठ को मिलाए नहीं पढ़ सकते, और बा भी बगैर होंठों को मिलाए नहीं पढ़ सकते। तो होठों ने बंद तो होना ही है। तो अली मुम्बिदा, अली मुम्बिदा, ठीक है ना। तो ये कायदा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर जो है ना वो, अच्छा, लिखें, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा हो, तो हम उसको, अगर बा आ जाए तो हम उसको बदल कर या पलट कर मीम बना देते हैं। और देखिए सामने लिखा हुआ है आपके ना,
नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, यहाँ पे लिख लें आ जाए, आ जाए, तो हम उसको बदल कर या पलट कर मीम बना देते हैं और इख्फा होता है, इख्फा होता है, इख्फा होता है। ठीक है ना, यानी कि आवाज जो है ना वो तरन्नुम की आवाज मतलब इख्फा वाली होती है, इख्फा होता है। और इस इख्फा को, ये भी लिख लें, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस इख्फा को इख्फा शफवी कहते हैं, इख्फा शफवी, इख्फा शफवी, इख्फा शफवी इसको भी कहते हैं ना, इख्फा शफवी, हाँ। यानी कि शफ कहते हैं असल में होठों को, वो इख्फा कि जिसके अंदर होंठ इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, अलीमुम बिज़ाति सुदूर। ठीक है ना, अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अच्छा जी, एक तो ये कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम उसको बदल कर या पलट कर मीम बना देते हैं और इख्फा होता है। इस इख्फा को हम, अब इख्फा शफ़ी नहीं बोले, इसको छोड़ें, इसको बस इख्फा कह लें। ये आखिर लफ्ज़ ना मिटा दें, अगर लिखा भी तो है तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ये अगर आखिर लिखा भी तो मिटा दें। ठीक है ना, बाकी ये इसको रहने दें फिलहाल। इख्फा होता है ये कंफर्म है कि अगर बा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम उसको बदल कर या पलट कर मीम बना देते हैं और इख्फा होता है। ठीक है ना, तो अली मुम बिदात सुदूर या मिम बैनी, और मिसालें इंशाल्लाह जब हम कुरान पढ़ेंगे तो आएंगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, ये बताएं सब। अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ओके डन। फैजान भाई, फैजान भाई, ओके ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब एक मिनट, क्या है, ठीक है जी, ओके, आखिरी रह गया। ठीक है जी, आखिरी हुक्म है, अब देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब इसको पहले हम मिटा दें। अब हमारा आखिरी में अच्छा मुझे बताएं अभी हमने कितना पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया इजहार, एक मिनट मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ। पहले हमने पढ़ा इजहार, ये नून साकिन और तनवीन के यहाँ काम आते हैं ना। इजहार पढ़ा हमने, इसके 6 हरूफ थे, हमजा, हा, आइन, हा, और गैन, और खौ, है ना। पहले 6 हमने ये पढ़े थे इजहार के। और उसके बाद फिर हमने पढ़े इदगाम, है ना। इदगाम के पढ़े, वो भी 6 हैं, या, रॉ, मीम, लाम, अ, वाओ, और नून, है ना, यरमलून, ये हमने पढ़े। तो 6 और 6 12 हो गए। और इक़लाब का हमने एक ही हर्फ पढ़ा है शायद, है ना, और वो है बा। ठीक है, ये हो गए 13। 6 और 6 12 और एक 13 हो गए ना। हाँ एग्जैक्टली, तो 6 और 6 12 और एक 13, तो बाकी कितने बचे? बाकी मेरे ख्याल में 15 बच गए, है ना, बाकी 15 बच गए, बाकी बचे 15। वो 15 हरूफ जो है ना जो बचे हुए हैं वो इख्फा के हैं, यानी कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये 6 आएंगे तो आपने तरन्नुम ही नहीं करना, है ना। ये 6 आएंगे तो इदगाम करते मिलाते हुए करना है वो भी, लेकिन इन 4 में आप हल्का गुन्ना करेंगे, इनमें बगैर गुन्ना होगा। ये तो हो जाएगा इकलाब, इसको तो बना देंगे मीम। इन 13 के अलावा जो बाकी 15 बचे हुए हैं, तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बाकी जो 15 बचे हुए हैं उनमें से कोई हर्फ आएगा तो इख्फा होगा। इख्फा कैसे होगा? अब देखिए ना,
قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. آگے کیا ہے؟ من، اب اس کو ہم من شرری نہیں پڑھ سکتے. آگے شین آ گیا بھائی، نون ساکن کے بعد شین آ گیا. تو شین نہ ان چھ میں سے ہے، نہ ان چھ میں سے ہے، نہ اس ایک میں سے ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ اخفا کا ہے. تو نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا کرنا پڑے گا. تو میں اس کو من شرری نہیں پڑھ سکتا. مجھے یہاں غنہ نہیں کرنا، مجھے یہاں اخفا کرنا ہے. کیسے وہ غنہ؟ من شرل، من شرل، من اور میں فرق ہے نا. بالکل یہی فرق ہے غنہ اور اخفا میں. من شر الوسواس الخناس. نون کے اوپر تشدید ہو تو غنہ ہو رہا ہے پیچھے، ہے نا. الہ الناس، یہ تو غنہ کیا میں نے. آگے من شر من، میں اس کو من شرری نہیں کہہ سکتا، یہ من شرری ہے. من شر ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ 15 حروف کیسے یاد ہو؟ ان کو یاد کرنے کا کوئی فارمولا ہی نہیں ہے. ہاں ایک شعر میں آپ کو لکھواتا ہوں ابھی. ایک شعر لکھواتا ہوں آپ کو میں ابھی، جس کے اندر مطلب سب سے اہم بات تو ایک تو یہ ہوگی کہ بھائی آپ دیکھ لیجیے گا یہ ان چھ میں سے نہیں ہے کوئی، ان چھ میں سے کوئی نہیں ہے، اور یہ با بھی نہیں ہے، تو ختم. اخفا کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہی ہوگا. اگر آپ کو یاد ہے حمزہ ہا عین ہا غین خو، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ پریکٹس سے آ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ آخر کی 20 صورتیں میرے ساتھ پڑھیں گے نا، آپ پورے قرآن میں خود ہی نشان لگا لیں گے. مجھے آپ کو لگوانا بھی نہیں پڑے گا انشاءاللہ. آپ نے صرف آخر کی 20 صورتیں میرے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد تو آپ خود سب ایسا پکڑیں گے، مزہ آئے گا آپ کو. اور یاد رکھیے گا تجویدی قرآن جو ہے نا وہ اب آپ لوگوں کے لیے زہر ہے. کیوں؟ تجویدی قرآن میں تو انسان محتاج ہے تجوید اس کے رنگوں کا. وہ تو عام آدمی کو دیا ہوا ہوتا ہے بیچاروں کو، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں تھوڑی آتا ہے. یہ تو یہ سمجھیں آپ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بھی، یہ تو بنیادی علم ہے، تو سب کو آنا چاہیے، بچپن سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن مجید کا حسن ہے، قرآن مجید کا. اور یہ ہمارے لوگ بالکل فارغ نابلد، جو پڑھ لیتا ہے وہ بولتا ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ معاف فرما، اتنے عرصے سے کچھ جو ہے نا وہ اتنا بنیادی چیزیں اور اتنی کوئی مشکل بھی نہیں ہے بلکہ حلوہ چیزیں ہیں. لیکن وہی بات ہے، بس اجنبیت ہے نا، اسے کہتے ہیں. دیکھیں نا اجنبیت جو ہے نا ہمارے دین کی، تو یہ اجنبیت ہوتی ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ مخفی ہو جاتی ہیں. آئے میں آپ کو اخفا کے حروف لکھواتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حروف اخفا 15 ہیں، آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں. حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. ٹھیک ہے جی. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار آئیں تو غنہ اور اخفا نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف اور صرف ایک سیدھے طریقے سے بس پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے. حروف ادغام 6 ہیں، یرملون. ان میں سے 4 میں ملاتے ہوئے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. حروف ادغام 6 ہیں، ان 6 میں سے 4 کو ملاتے ہوئے غنہ ہوتا ہے، اور 2 کو ملاتے ہوئے غنہ نہیں ہوتا. حرف اقلاب ایک ہے، با. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حرف با آتا ہے تو ہم اس کو پلٹ کر یا بدل کر میم بنا دیتے ہیں اور اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حروف اخفا 15 ہیں. ٹھیک ہے جی. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی آئے گا تو اخفا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا ہے اخفا؟ میں آپ کو لکھواتا ہوں، دیکھیں ابھی. صف، ذا، ثنا. صف ذا ثنا، کم، جاد، شخص، قد سما. صف ذا ثنا، کم، یہ کاف ہے سوری، اس کو ملائے تھے. کم جاد شخص قد سما. ٹھیک ہے جی. تم طیبا، سوری یہاں لکھتا ہوں، تم طیبا، تم طیبا. زد فی، زد فی تقا.
जिद फी तुकन, सॉरी ये अलिफ वाला नहीं है, सॉरी, यहाँ से लेके, हाँ सॉरी, चलो पूरा को मिटा दें। जिद फी तुकन, जिद फी तुकन, ये वाला कॉफ है, हाँ। जिद फी तुकन। ضع ظالما या ضع ظالما। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें कितने हरूफ हैं भाई। ओके जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, सबके पहले पहले हर्फ। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, क्या बात है, 15। अच्छा जी, सिर्फ ذا सना कम जाद शख्सन कद समा। तुम जना वो सिफात बयान करो और तारीफ बयान करो उस शख्स की जो अच्छा है। तुम तय्यिबन, तुम पाकीज़ा रहो। जिद फी तुकन, तकवे में ज्यादा हो। तअ ज़ालिमन, जुल्म छोड़ दो। ठीक है ना, इसका मतलब है सिर्फ सिफात बयान करो। ज़ा सना, उस शख्स की। कम जाद शख्सन कद समा, के जो के तारीफ के काबिल हो उस शख्स की तारीफ करो। ठीक है जी, इसका मफहूम ये है। हाँ, नीचे वाले का मतलब बता रहा हूँ। जिद फी तुम तय्यिबन, तुम पाकीज़ा रहो। जिद फी तुकन, तकवे में ज्यादा हो जाओ। ज़ा, ज़ा का मतलब होता है उतरुक, छोड़ दो। छोड़ दो जालिमन, जुल्म छोड़ दो। तो इस शेर का मतलब भी है। ठीक है ना। तो सिर्फ ذا सना कम जाद शख्सन कद समा, दुम तय्यिबन जिद फी तुकन ضع ظالما। ठीक है ना। सिर्फ ذا सना कम जाद शख्सन कद समा, दुम तय्यिबन जिद फी तुकन ضع ظالما। ठीक है ना। सिर्फ ذا सना कम जाद शख्सन कद समा। एक सेकेंड, अब ये हरूफ हैं, हरूफ इख्फा। एक सेकेंड में और देखता हूँ एक चीज, एक मिनट। अ, अच्छा जी, कम जाद शख्सन कद समा, कसीर मिन अन्नास कद जादा व तकर्रम अला गैरिही। ठीक है ना। फस्तहक्का अन यसमु व यालु क़दरिही व यर्तफु शअनहु। तुम तय्यब, ये ना, तुम तय्यबन का मतलब होता है भाई पाकीज़ा रहो, यानी कि अच्छे अखलाक वाले रहो। जिद फी तुकन, तकवे में अल्लाह ताला के आगे बढ़ो और जुल्म छोड़ दो। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ ज़ा सना, उस शख्स की तारीफ बयान करो। कम जाद शख्सन कद समा, कि जो कि वाक़तन इखलाक वाला हो। ठीक है ना। कि जादा कहते हैं तकरीम वाला, जो शख्स बाइज्जत हो उसकी तारीफ बयान करो। ठीक है जी, सिर्फ ज़ा सना कम जाद शख्सन कद समा। और फिर ये है कि तुम तय्यबन, तुम पाकीज़ा रहो, ज़िद फी तुकन और दुआ ज़ालिमन। ठीक है। तो अब क्या है, ये इसमें आपको कुरान मजीद का कोई एक, शायद बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसी लाइन कुरान मजीद की आ जाए कि जिसमें कोई अख्फा ना हो। कहीं ना कहीं सौद आ रहा है, कहीं जाल आ रही है, कहीं सा आ रहा है, कहीं काफ आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसको आप देखें आप, तो इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप निकालें इसमें से, तो सीन शीन, सौद वाद, है ना, और तो ज़ा,
तो और ज़ो, आइन गाइन तो नहीं हो सकता, है ना। अच्छा जी, जा सीन, जा और सीन, अच्छा सीन तो हो चुका ना, सॉरी जा, सीन शीन सौद जौद तौजो, दाल दाल दोनों है ना, दाल दाल, दाल और दाल, रॉ नहीं है, सिर्फ जा है, और ता है ना, बा, बा भी नहीं हो सकता, ता, सॉरी, ता और सा, ता और सा, कौफ काफ, कौफ और काफ दोनों है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, दो और रह गए, फा और मीम है मेरे ख्याल में ना, नहीं मीम तो नहीं हो सकता, फा होगा, सा है, सा हो चुका, काफ भी हो गया, जीम 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 जीम, फा और जीम। ठीक है, ये 15 हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, सीन शीन सौद जौद तौज़ा, कौफ काफ, सीन शीन सौद जौद तौज़ा दाल दाल कौफ काफ, ये तो हो जाएगा पेयर। और बल्कि ता और सा और फा और जीम, तो वैसे ये भी याद, वैसे भी याद करना आसान नहीं है, मतलब आसान वो मुश्किल नहीं है, और ये जो अगर आपको शेर याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सिफ ذا सना कम जाद शख्स कद समा, दुम तय्यबन जिद फी तुकन ضع ظالमन। ठीक है जी, तो ये हमारे चार अहकामात हो गए, इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा। नून साकिन और तनवीन के बाद, ठीक है ना, अगर इस हुरूफ इजहार आ जाए तो इजहार होगा, बगैर गुन्ना और बगैर इख्फा के पढ़ेंगे। हुरूफ इदगाम में से कोई आ जाए तो मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे, चार यू मिन में, लाम और रो आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, सिर्फ मिलाएंगे। बा आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद तो इखलाब होगा। और उसके अलावा कुछ भी हो, मतलब यानी कि वो 13 हरूफ अगर आप हटा दें, बाकी इन 15 हरूफ में से कोई भी आएगा अगर नून साकिन और तनवीन के बाद, तो इख्फा करेंगे। ठीक है ना, जो कि गुन्ना से थोड़ा सा अलग होता है। नून की आवाज को नाक में इख्फा के साथ हम तरन्नुम से पढ़ेंगे, ऐसे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ठीक है ना, तो ये जो कर रहे हैं हम, ये एक हुस्न भी है, ये एक तरन्नुम भी है। बस हमारा अब एक और हुक्म रह गया, वो है जिस तरह आपने नून साकिन और तनवीन के ये चार कायदे पढ़े हैं, हमें एक और पढ़ना है, वो क्या है, मीम साकिन के कवायद। वो भी छोटे छोटे से, अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, मीम साकिन के कवायद। और अपना आप लोग एक अम्मा पारा पर्सनल बना लीजिए, जिसमें कोई भी जो ना वो रंग बिरंगा ना हो, सादा अम्मा पारा खरीद लें। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे आयतें लिख कर निशान लगवाऊंगा, वो निशान जो मैं लगाऊंगा वो आप अपने अम्मा पारे में लगाएंगे इंशाल्लाह। और फिर तजवीद को फॉलो करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछा करूंगा कि कौन सा रूल कहाँ है। जो भी मैं बोलूंगा, जो पूछूंगा, आप लोग इंशाल्लाह मुझे बताएंगे अल्लाह के हुक्म से। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होगी और फिर मैं आपकी मश्क भी करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया आखिरत में अजर अजीम अता फरमाए। कोई सवाल हो तो पूछ लें। डन हो गया, कोई सवाल नहीं है। ओके, ठीक है, फिर दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह खुसूसी, और इसको पक्का याद कर लें। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को दुनिया आखिरत में अजर अज़ीम अता फरमाए। बारक अल्लाहु फी जमीइ उमूरिकुम फिद दुनिया वल आखिरह। हमने कल पढ़ना है मीम साकिन के तीन अहकामात, और परसों से हमने अपना अम्मा पारा शुरू करना है। दुआ कर दीजिएगा, खुसूसी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला आफियत फरमाए। ठीक है ना, तो बस वो ऐसा हो जाते हैं मामलात। बच्ची का जो है ना वो असल में इंतकाल हो गया, वो जो, एक मिनट, हाँ,